back. So, guys, finally a win for Real Madrid, and just now the game ended, and it was a semi-final of Spanish Super Cup between Real Madrid and Mallorca. And guys, it was a tough game, you can say, for Real Madrid, but it ended in favor of Real Madrid, and Real Madrid defeated Mallorca by 3-0. So, guys, El Clasico is coming, and this will be the final of Spanish Super Cup between Real Madrid and Barcelona. So guys, the game just ended, and by game की बात करते हैं. Let's talk about the game. I think it was a frustrating game for Real Madrid fans, and nothing was going as expected, especially for in the first half. And यार पता नहीं भाई क्या चीज़ हो रही है मैड्रिड में. I don't know man, इतना फेवरिज्म क्यों हो रहा है, especially with the players. And guys, I'm talking about Ferland Mendy, our left back, our full back. So guys, formation was quite decent, and जो एक 4-2-3-1 Real Madrid खेल भी रही है काफी टाइम से. But guys, I was surprised to see Ferland Mendy there again. I don't know man, Ancelotti यार इतना क्या सपोर्ट भाई. I don't think there will be many fans जो ये चीज इस बात से agree करेंगे that Ferland Mendy is a better fullback than Fran Garcia. हाँ, experienced है चलो. Ferland Mendy is more experienced. Ferland Mendy has more strength. But apart from that, I don't think decision making Ferland Mendy की भाई it's poor. Attacking threats उसके poor. जिदान के टाइम he was good in defending, but भाई अब तो वो खत्म हो गई उसके. Defending नहीं थी भाई उससे. Forward runs उसके useless runs. I don't know man क्यों वो चीज़ हो रही थी. But luckily भाई कोई error उस level का नहीं हुआ that resulted in a goal. So that was from the Mendy side. So guys, first half काफी struggle किया Madrid ने. Guys, the front three, Vini, Rodrigo, Mbappe. Vini तो भाई totally out of touch था throughout the game. And guys, I think Vini substitute होने से कुछ 5 मिनट पहले he was in a good run. So that was all for Vinicius today. Just 5 minutes of game. He had a good game just for 5 minutes. And apart from that, his game was very slaggy. He was doing nothing यार. उससे dribble pass नहीं हो रहा था भाई उससे. कुछ occasions में उसने dribble pass किया, but end result was nothing. Short attempt उससे नहीं हो रहे थे. Crosses उससे नहीं आ रहे थे यार. He was giving so many bad crosses. So finally वो substitute हो जाता है. And guys, let's talk about Mbappe, and nothing for Mbappe, nothing there for Mbappe. I think ना the best thing for Mbappe will be ना कि अगर वो build up करके चले 1-2 touches with his attacking partners, with Vinicius and Rodrigo, or with Bellingham. This thing will help or benefit Mbappe more rather than going alone. भाई क्या भाई प्रॉपर भाई अकेला जा रहा है बंदा बॉक्स में, शॉट्स पे शॉट्स ले रहा है, कोई बिल्डअप नहीं, सेल्फिश गेम चल रही है, जहाँ बॉल मिल रही है वहीं से शॉट ले रहा है, ड्रिबल कुछ नहीं यार, नथिंग मैन, कोई पेस भी नहीं, neither is able to beat the pace of any center back, full back, or neither he is nor is able to create any chance. So भाई I don't know यार, Bellingham is good for, sorry, I don't know what is Mbappe good for. अगर भाई उसको उसके अराउंड टीम बिल्ड करनी है, सो आई थिंक रोड्रिगो और विनी को फिर कमिट होना पड़ेगा कि दे विल नॉट ट्राई एनी चांस, दे विल ओनली क्रिएट टू एम्बापे. सो भाई दिस इज नॉट द थिंग वी वांट. सो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे भाई आज गोल्स आए. द फर्स्ट गोल दैट केम फ्रॉम नोवेयर, एंड क्रॉस आया था विनी का, एम्बापे का मिस हुआ, उसके बाद रोड्रिगो का मिस हुआ, फिर जाके गाइस बेलिंगम ने स्कोर किया. सो द गोल फॉर बेलिंगम, एंड फाइनली जूड बेलिंगम इज बैक इन द गोल स्कोरिंग फॉर्म. एंड गाइस मुझे लग रहा है ना कि जो एक मिसकम्युनिकेशन जो हो रही है, एक जो केमिस्ट्री नहीं बन पा रही विनी, रोड्रिगो और एम्बापे के बीच, स्टिल उसका जो लूप होल है ना, वो जो क्रिएट हो रहा है, वो भाई बेलिंगम फिलअप कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई द गोल्स आर कमिंग फॉर बेलिंगम. And Bellingham was amazing, guys. I think the best player today was Bellingham. He did everything, man. सब कुछ किया हुआ इसमें. Last में भाई player was exhausted, and I think उसको कुछ ligaments issue भी हो रहे थे, but still player was not substituted. He played the full 96 minutes. So the best player today, Bellingham, the goal scorer also. And guys, Rodrigo, man, I think this was the worst game of Rodrigo. मुझे लगता है यार Rodrigo would ever want to remember this game. He was so bad, man, so bad. Bad crosses, bad inwards, bad shooting, nothing. भाई 5-6 शॉट्स लिए रोड्रिगो ने, सारे ब्लॉक हो गए. क्रॉसेस उससे आ नहीं रहे थे, जितने भी क्रॉस ले रहा था सारे मुंह के पास ब्लॉक हो रहे थे, इन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे. शॉट्स ले रहा था ऑफ टारगेट. एक शॉट मारा था उसने, आई थिंक 11-12 मिनट के अराउंड. वो भी भाई शॉट नहीं था, बहुत घटिया शॉट था, वो डायरेक्ट गोलकीपर ने कैच कर दी थी बॉल. सो दैट वाज द ओनली थिंग रोड्रिगो डिड टुडे. सो फाइनली लास्ट में भाई गोल आ गया रोड्रिगो के लिए, थैंक गॉड. आई होप वो चीज़ उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर लेगी थोड़ा. सो
अपार्ट फ्रॉम दैट रॉड्रिगो वाज वेरी वेरी बैड टुनाइट एंड एंचेलोटी ने भाई सब्स्टिट्यूशंस फिर टाइमली नहीं की. ब्राहिम डियाज केम इन एट आई थिंक अराउंड 86-88 मिनट. सो गाइस यार ये चीज़ ना मिस आउट हो रही है यार मैड्रिड में. रोटेशन इज़ वेरी नेसेसरी क्योंकि जो ये प्लेयर्स है ना एंड्रिक, हमारे ब्राहिम डियाज एंड गुलर, गाइस इन प्लेयर्स से स्टार्ट करवाएंगे अगर तो थोड़ी ना अब हमें ना थोड़ा एरर दिखने लग जाते हैं इन प्लेयर्स के, बिकॉज दे आर नॉट रेगुलर प्लेयर्स. रोटेशन में भाई ये प्लेयर्स अंदर आ नहीं रहे हैं, सो केमिस्ट्री बन नहीं पाती, प्लेइंग टाइम मिल नहीं पाता. ओकेजनली भाई ये प्लेयर्स खेलते हैं. सो आई डोंट नो मैन, लेट्स होप फैंस जज ना करें उनकी आउट ऑफ फॉर्म के लिए इन प्लेयर्स को, बट दीज प्लेयर्स आर रियली फुल ऑफ कैलिबर. एंड गाइस ब्राहिम डियाज ने शो किया द लास्ट गोल फॉर रियल मैड्रिड. गाइस ब्राहिम डियाज, द क्रेडिट गोज टू ब्राहिम डियाज. एंड वो चीज़ होती है गाइस, दो एक नंबर 10 जो चीज़ कर सकता है टीम में वो और कोई नहीं कर सकता. एंड आई थिंक ब्राहिम डियाज ट्राई टू क्रिएट अ बॉल टू एम्बापे एंड ये चीज़ ना आई थिंक फर्स्ट टाइम हुई थी गेम में, क्योंकि एम्बापे को सेंट्रली जो पास मिल सकते थे वो नहीं मिले थ्रू आउट द 90 मिनट्स. वो पास उसको लास्ट में मिला था फ्रॉम ब्राहिम डियाज, बट लकीली वो डिफ्लेक्शन होगी गोलकीपर से, फुल डिफेंडर से, एंड इट वेंट इनसाइड द नेट एंड भाई वो गोल मिल गया फॉर रियल मैड्रिड. So this is the thing that happened today, and apart from that Real Madrid were decent. Raul Asensio who came on, I think Tchouaméni injured हो गया था बीच में, उसकी जगह Raul Asensio अंदर आया था and Raul Asensio was really good. And guys, Sergio Ramos की vibes वो बंदा देता है भाई में, he gives us goosebumps. So let's hope यार Ancelotti, guys हमें तो ये चीज़ पता है यार, लेकिन I hope Ancelotti इस चीज़ को ज़्यादा फोकस में ले, ज़्यादा नोटिस करे इस चीज़ को कि जो प्लेयर्स रोटेशन में आ रहे हैं ना. guys just look at Brahim Diaz. He came in at 88 and उस बंदे ने डिफरेंस डाला गेम में. The goal came from Brahim Diaz efforts and even Raul Asensio, वो भी भाई काफ़ी लेट आया था गेम में. Still he made some difference guys. काफ़ी ब्लॉक्स उसने किए थे. I think 2 शॉट्स उसने काफ़ी अच्छे ब्लॉक भी किए and लास्ट में भी यार एक स्लाइड टैकल बहुत अमेजिंग किया था उसने, काफ़ी अमेजिंग. So I hope बारसा के साथ guys the final of Super Cup is coming, El Clasico is coming here. सो लेट्स होप जो एरर्स जो मिस्टेक्स मैड्रिड ने की है इस गेम में वो भाई फाइनल में रिपीट ना हो गाइस. सो आई विल सी यू एट एल क्लासिको. बाय बाय.